Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel Physics Inside. Today in this video, we are going to solve some numericals related to Lenz formula and the relation between radius of curvature and the focal length. सबसे पहले इन numericals के अंदर हम ये identify करेंगे which kind of mirror we are having. So let's read the first statement. The radius of curvature of convex mirror is 40 centimeter. So firstly we will make how convex mirror looks like. See, this is how my convex mirror looks like. Okay, so this will be the center of curvature of this mirror. Here we will get the pole, and moreover it is written here that radius of curvature is 40 centimeter, means the gap between center of curvature and pole is 40 centimeter. अब देखो हम ऑब्जेक्ट इस तरफ रखते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये वाला है, पीछे वाला पॉलिश्ड है जिसको मैंने ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. So in here we will also consider the sign conventions. अब देखो यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन क्या रहेगी, that will be from left to right. Okay, and we always measure distances from pole. अब जब भी मैं in the direction of light move करूँगा, that time I'll take my distance to be positive, and जब भी हम against the direction of light चलेंगे for the measurement, we will take that distance be negative. For radius of curvature we are starting from P and we are going in the direction of light, that is from left to right. So curvature का distance कितना आ गया बेटा, 40 आ गया. So R will be your plus 40. In the direction of light we are getting, so R is plus 40. Now we know that R is equals to 2F. So if R is 40, so your focal length will be plus 20 centimeter. Clear? So this is how we solve. Now in the next question we are having concave mirror whose focal length is 10 centimeter. We need to find its radius of curvature. So here we are getting focal length and radius of curvature we need to evaluate. First let's make concave mirror. So it looks like this. This is the pole and this is center of curvature. Here on this side you will place the object and this one is the reflecting side. So my direction of light will be from left to right. Okay, now here the focal length is given, so that is the distance between focus and pole, small f. So that distance is given to be 10 centimeter. और अब ये distance हम pole से जब भी measure करेंगे, we are moving against the direction of light. So here we will get focal length to be minus 10 centimeter. Also R is equals to 2F. That's why radius of curvature is minus 20 centimeter. So here we get it. Okay. So next question we are having an object of height 2 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position, size and nature of image. अब सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, which kind of mirror we are having. We are having concave mirror here. So like this we are having the mirror. अब other condition what we are getting here, that is focal length. अब इसके बाद हमने focal length और radius of curvature को trace करने की कोशिश करनी है सबसे पहले. So यहाँ पे हमारे पास focal length है 12 centimeter. So this is my 12 centimeter. तो इसका मतलब हमारा radius of curvature किस पे होगा, 24 पे होगा, because R is equals to 2F. So radius of curvature will be at 24 centimeter. अब वो आपको क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर. अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा है, 20 सेंटीमीटर पे प्लेस करा है, मतलब ऑब्जेक्ट 12 और 24 के इन बिटवीन कहीं है. सो लेट इट बी U 20 सेंटीमीटर. यहाँ पे U हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हैं, F फोकल लेंथ है, और जब भी हम V की बात करेंगे दैट विल बी माई इमेज डिस्टेंस. सो नाउ राइट डाउन U विल बी minus 20 centimeter. Focal length is your minus 12 centimeter. We need to evaluate the position, size and nature of image. मतलब इमेज का डिस्टेंस भी हमें चाहिए, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, साइज वो भी हम बात करेंगे, और नेचर ऑफ इमेज. और इसमें आपको क्या चीज़ दी गई है, आपको दी गई है हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू 2 सेंटीमीटर. ओके, सो ये हाइट पे हम बाद में चलेंगे, पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं इमेज की. So it will be 1 by V plus 1 by U is equals to 1 by F. क्योंकि हम यहाँ पे मिरर यूज़ कर रहे हैं, so we will use mirror formula here.
So 1 by v plus 1 by minus 20 is equals to 1 by minus 12, or you can say 1 by v minus 1 by 20 is equals to minus 1 by 12. 1 by v is equals to 1 by 20 minus 1 by 12. So when you will take LCM, so 20 and 12, so it will be 60. So here you will get 3 minus 5. So 1 by v will be minus 2 by 60, or you can say v will be minus 30 सेंटीमीटर. एज 1 बाई वी इज 1 बाई 30, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे बच्चे तो v आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर. मतलब आपने अगर ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, तो इमेज कर्वेचर से पीछे बन रही है, ठीक है, माइनस 30 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड. सो यहाँ कहीं इमेज बन रही है इस पॉइंट के आसपास, 24 से पीछे 30 पे. अच्छा, अब उसके बाद हमें प्रोवाइडेड है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर. निकालना क्या है, हमें साइज़ निकालना है. जब भी हमारे पास साइज़ की बात हो तो बेटा साइज़ निकालने के लिए हम हमेशा मैग्निफिकेशन निकालते हैं पहले. सो साइज़ का मतलब है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है. सो साइज़ कैन बी इवेलुएटेड यूजिंग मैग्निफिकेशन फर्स्ट, और मैग्निफिकेशन से ही हमें नेचर के बारे में पता चल जाएगा. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस v by u. So m can be written as minus v, so it will be minus 30 अपॉन u. u is minus 20, so ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये भी. so m can be written as minus 1.5. so this is the value of your magnification. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है in case of mirror, so image is real and inverted. Got it? And moreover, also we know that magnification can be written as height of image to the height of object. अब हमें height of image निकालनी है. अब मैग्निफिकेशन कितनी आई, मैग्निफिकेशन आ गई माइनस 1.5, और यू कैन से 3/2. अब देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, जितने भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मैयर करेंगे, हाइट्स मैयर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर पॉजिटिव, एंड हाइट्स मैयर्ड डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस दे आर नेगेटिव. ठीक है, तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है बेटा, तो हाइट विल बी पॉजिटिव, सो दैट इज प्लस 2 सेंटीमीटर. सो व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाइड, सो योर हाइट ऑफ इमेज विल बी माइनस 3 सेंटीमीटर. इट मीन्स द इमेज इज इन्वर्टेड. वही हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया ना, रियल एंड इन्वर्टेड. अगर इमेज इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है उसकी हाइट, तो वो नेगेटिव आएगी. सो हियर वी आर गेटिंग negative. So see, we have evaluated the position, that is v minus 30 centimeter, that is 30 centimeter from the pole on the same side, and size is 3 centimeter, and nature of image is real and inverted. चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Now next question we are starting with, that is an object is placed at a 4 centimeter distance in front of a concave mirror of radius of curvature 24 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. इज द इमेज मैग्नीफाइड. अब सबसे पहली बात हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिरर देखना है कौन सा है. सो वी आर हैविंग कनकेव मिरर हेयर. लेट्स मेक इट. दिस इज पोल एंड लेट दिस बी रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है, तो कर्वेचर है 24 सेंटीमीटर पे, एंड फोकल लेंथ, योर फोकस इज एट 12 सेंटीमीटर. Now we need to evaluate position of image. Also object is given at 4 centimeter in front of concave mirror. 4 means your object is placed between focus and pole. Clear? So this is your U, 4 centimeter. अब हम sign conventions भी check करेंगे यहाँ पे. See, all the distances I am measuring against the direction of light, क्योंकि object से light लेफ्ट टू राइट साइड पे जा रही है, बट हम पोल से जितने भी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं वो सारे रिवर्स डायरेक्शन में है. सो यू विल बी, सो यू इज 4 minus 4 सेंटीमीटर, आर इज minus 24, सो योर फोकल लेंथ इज minus 12 सेंटीमीटर. सो वी नीड टू इवेलुएट v. सो हमें पता है फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. So using that, so 1 by v will be 1 by 4 minus 1 by 12. LCM came out to be 12, so 3 minus 1, so 1 by v will be,
सो v विल बी +6 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब है पोल से दूसरी तरफ हम चल रहे हैं 6 सेंटीमीटर अवे हमारा इमेज बन रहा है यहाँ कहीं, ठीक है। सो अब ये तो आ गया हमारे पास v। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ रही है मीन्स ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। जब मैग्निफिकेशन 1 आए मीन्स m का फॉर्मूला यही होता है ना, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैग्निफिकेशन आएगी 1, और अगर HI बड़ा हो जाए तो 1 से वैल्यू एक्सीड करेगी ना मैग्निफिकेशन की। तो जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइड आएगी, ठीक है। अब चेक करते हैं मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है, -v/u। सो यहाँ आ गया -6 -4, so 2 2s are 4, 2 3s are 6, that is 1.5, which is greater than 1, hence we can say that our image is magnified. Okay, so now let's proceed to the next question. At what distance from a concave mirror of focal length 25 centimeter should an object be placed so that the size of image is equal to the size of object? Draw a ray diagram to show this. At what distance from a concave mirror? Okay, so firstly we are making concave mirror. Here is pole and focal length. This f is 25 centimeter. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कर्वेचर कितना आएगा, कर्वेचर आएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या बोल दिया, हमें बोल दिया कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों इक्वल हैं। तो बच्चे ये एक ही केस पॉसिबल होता है मैग्निफिकेशन 1 वाला, व्हेन image and object both are at center of curvature, ठीक है। अगर दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़े हैं ओनली इन दैट केस इट विल बी फॉलोड। और इसकी जो रे डायग्राम है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको शो करी है जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बनानी सिखाई थी, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर so its image will be formed at center of curvature of the same size। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। u और v दोनों इक्वल हो गए। सो रियल इमेज है। सो अब देखो अगर रियल इमेज बनती है तो बेटा वो इन्वर्टेड बनती है और ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड पे है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो पॉजिटिव है लेकिन हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। सो योर मैग्निफिकेशन इज -1। गॉट इट। सो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं -v/u दैट इज इक्वल्स टू -1। सो आपका जो v और u है वो सेम डिस्टेंस पे शो कर रहा है। गॉट इट। सो अब 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/-25 इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/u, क्योंकि दोनों इक्वल है। So 1/-25 is equals to 2/u. Now we are getting u equals to -50 सेंटीमीटर। देखो हमारा c सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो 50 पे आएगा ना, बिकॉज r is equals to 2f. So that's why my object is placed at 50 centimeter from the pole and image will be formed on the same side। देखो from a v will be equal to u will be equal to -50 सेंटीमीटर। अब देखो जो हमारी इमेज है वो भी 50 सेंटीमीटर पे बन रही है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। नाउ फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर मीन्स फोकस इज एट 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, अगर फोकस 10 सेंटीमीटर पे है तो इसका कर्वेचर कहाँ होगा, 20 सेंटीमीटर पे होगा। ओके, अब हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं 60 सेंटीमीटर, दैट इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे u इज -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज -10 हेयर। सो हमें निकालनी है पोजीशन दैट इज v एंड साइज ऑफ इमेज दैट इज hi। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज
ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम आ गया 60, 1 माइनस 6, सो 1/v इज माइनस 5/60, सो v विल बी इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने निकालना है साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, वही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हम, दैट इज इक्वल्स टू माइनस v/u। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, एच आई तो हमने निकालना ही है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू दैट इज 5 सेंटीमीटर, सो एच ओ विल बी प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट हम अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सेस मेजर करते हैं। सो इट इज़ 5, सो हियर इज माइनस v upon minus 60, so v will be minus 12 by 60, so height will be minus 1 सेंटीमीटर। रियल इमेज बन रही है क्योंकि एच आई की वैल्यू नेगेटिव आई और मतलब इन्वर्टेड इमेज है आपकी, सो हाइट ऑफ इमेज इज 1 सेंटीमीटर एंड मोर ओवर द पोजिशन इज माइनस 12 सेंटीमीटर। तो अब चेक करते हैं, जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर के पीछे बढ़ा हो तो इमेज बनती है कर्वेचर और फोकस के बीच में। फोकस है 10 सेंटीमीटर पे और कर्वेचर है 20 पे, तो डिस्टेंस क्या है इमेज का फ्रॉम पोल, दैट इज 12 सेंटीमीटर, वो इन बिटवीन ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सो इसका मतलब जो हमारे पास साइज ऑफ इमेज है वो भी निकल गया और पोजीशन ऑफ इमेज भी आ गई। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करना है विच काइंड ऑफ मिरर वी आर यूजिंग। So let's see, a point light source is kept in front of a convex mirror. So convex mirror कुछ ऐसा होगा, ये हमारा आ गया पोल। अब बोला गया हमें जो सोर्स है दैट इज एट 40 सेंटीमीटर, सो मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लाइट सोर्स पड़ा है और यहाँ से लाइट आ रही है। अब फोकल लेंथ कितनी दी है हमें, फोकल लेंथ इज गिवन टू अस दैट इज 40 सेंटीमीटर, और तो इसका कर्वेचर कितना हो जाएगा, कर्वेचर इसका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू है माइनस 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ विल बी प्लस 40 सेंटीमीटर। अब हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, v निकालना है, सो दैट विल बी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो हेयर 1/v प्लस 1/- 40 is equals to 1/+40. So 1/v will be equal to 1/40 plus 1/40. So here 1/v will be 2/40. So v will be equal to plus 20 centimeter. So in between pole and focus we are getting our image, मतलब यहाँ कहीं 20 centimeter from the pole we will get the location of image. Okay, so now moving to the next question, the 8th one. When an object of height 1 centimeter is kept at a distance 4 centimeter from a concave mirror, its erect image of height 1.5 centimeter is formed at a distance of this, find the focal length of the mirror. अब सबसे पहले हमें चाहिए कनकेव मिरर है, तो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कनकेव मिरर। सो ये हमारा आ गया पोल। अब और क्या दिया हुआ है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, u की वैल्यू है। अब इसमें फोकल लेंथ हमने निकालनी है, फोकल लेंथ इज नॉट गिवन टू अस, सो u की वैल्यू हमें बताई गई है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, सो मीन्स u इज नेगेटिव हेयर, सो u इज माइनस 4 सेंटीमीटर। इरेक्ट इमेज ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, यहाँ इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, सो वी एस 6 सेंटीमीटर। जब इरेक्ट इमेज बन रही है कनकेव के लिए, सो इसका मतलब मेरा फोकस और पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, सो दिस f आई नीड टू इवेलुएट, सो हियर इज माई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ठीक है, सो अब v की वैल्यू भी हमें पता है, सो v इज in the direction of light we are evaluating, in this direction light is also in this direction, so v will be positive here, so v is coming to be plus 6 centimeter. So again using the mirror formula, 1/v plus 1/u, so 1/f is equals to 1/v is 1/6 minus 1/4, so 1/f, so 6 और 4 का LCM,
ये आएगा 12, 2 minus 3, so 1 by f it will be minus 1 by 12, or you can say focal length is minus 12 centimeter. So this is the focal length of your mirror. Okay, now proceeding to the next question, ninth one. An object of length 4 centimeter is placed in front of a concave mirror at a distance 30 centimeter. The focal length of mirror is this. अब फिर से हम ऑब्टेन कर रहे हैं अपनी इमेज को कनकेव मिरर पे. Here is my pole. Now here focus is at 15 centimeter and curvature is at 30 centimeter now. Clear? अब हमें u की वैल्यू दी गई है. Object of length this in front of concave mirror at a distance this. So u is given to us, that is minus 30 centimeter. ठीक है. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पे है, तो ये इमेज भी यही बनेगी. ये मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन की हेल्प से बता दिया, पर हम इवेलुएट करके भी देखते हैं. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज एंड वेयर विल द इमेज फॉर्म. अब देखो v की वैल्यू हमने निकालनी है. 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u. अब फोकल लेंथ कितनी है कनकेव मिरर की, दैट इज माइनस 15 सेंटीमीटर. सो पुट करेंगे 1 by minus 15 इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by 30. तो ये आ जाएगा 1 by 30 माइनस 1 by 15 इज इक्वल टू 1 by v. एंड हेयर 30 और 15 का एलसीएम जब हम लेंगे 30 आएगा. सो हेयर विल बी 1 माइनस 2 माइनस 1 by 30. सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर. आ गया ना भाई. कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो कर्वेचर पे ही इमेज पड़ी है. अब इसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं. मैग्निफिकेशन कितनी आएगी. सो मैग्निफिकेशन विल बी माइनस वी बाई यू. सो माइनस ऑफ माइनस 30 डिवाइड बाई यू, दैट इज माइनस 30. सो यू कैन क्लियरली सी मैग्निफिकेशन विल बी माइनस 1. सो इफ मैग्निफिकेशन इज माइनस 1, वी कैन से हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस 1. अब हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चे. इट इज़ 4 सेंटीमीटर इन पॉजिटिव, सो इट विल बी माइनस 1. सो हाइट ऑफ इमेज विल बी माइनस 4 सेंटीमीटर. तो मैग्निफिकेशन ने हमें क्या बताया कि इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड. और ये माइनस 4 सेंटीमीटर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये इन्वर्टेड इमेज के बारे में बता रहा है. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ द साइज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें दिया हुआ कनकेव मिरर. ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. और हमें ये बोला गया है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर. हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे पड़ा है, उसकी एक रियल इमेज बन रही है. तो रियल इमेज बन रही है तो इसका मतलब फोकस जो है बेटा वो ऑब्जेक्ट से पहले है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल में होता तो इसकी वर्चुअल इमेज बननी थी. रियल इमेज के लिए फोकस से पीछे रहेगा आपका ऑब्जेक्ट. सो यू विल बी माइनस 30. ठीक है. एंड मोर ओवर अब क्या है, हमें v निकालना है. यहाँ पे v निकालने के लिए हम ये कंडीशन को यूज़ करेंगे. द साइज ऑफ इमेज इज 3 times. ओके, सो इमेज इज 3 times दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इमेज क्योंकि रियल बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव. मोर ओवर मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज hi by ho. सो दैट इज ऑल्सो माइनस v by u. तो हाइट ऑफ इमेज आएगी माइनस 3 ho by ho. ये कैंसिल हो गया बेटा, माइनस से माइनस. सो v विल बी इक्वल टू 3u. अब u की वैल्यू कितनी है, u इज़ माइनस 30. तो बेटा v कितना आ गया, v केम आउट टू बी माइनस 90 सेंटीमीटर. अब यूज़ करेंगे फिर से वही 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f. सो 1 by v इज माइनस 1 by 90 माइनस 1 by 30 इज इक्वल टू 1 by f. 30 और 90 का एलसीएम 90. सो माइनस 1 माइनस 3 1 by f, it came out to be minus 4 by 90 is equals to 1 by f. अब f की वैल्यू कितनी आएगी, it came out to be 90 by 4. So 2 2s are 4, 2 4s are 8,
2 5s are 10. So your focal length came out to be minus 22.5 सेंटीमीटर. अगर अब हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है तो वो हमारे पास 90 आ गई है और फोकल लेंथ आ गई है माइनस 22.5 सेंटीमीटर. गॉट इट बच्चे? So now proceeding to the next question. A concave mirror forms a virtual image of size twice that of object placed at a distance 5 cm from it. Find the focal and the mirror position of image. अब ये आ गया हमारे पास concave mirror. यहाँ आ गया हमारे पास पोल. जो ऑब्जेक्ट है that is located at minus 5 cm and concave mirror forms a virtual image of size twice that of object. अब वर्चुअल इमेज है तो v पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये हमने निकालना है, फिर भी हम निकाल देंगे. फोकल लेंथ भी हमें नहीं पता, वो भी हमने निकालनी है. एंड मोर ओवर हमें एक चीज़ और पता है, दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल है तो हाइट पॉजिटिव बनेगी इमेज की, क्योंकि इमेज भी ऊपर ही बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वर्चुअल. ओके, सो मैग्निफिकेशन विल बी HI/HO. So 2HO by HO. So magnification came out to be U. So minus V by U. So V came out to be minus 2U. So V की value minus 2 into 5 minus 5. So V will be 10 centimeter. So जो distance of image है that is 10 centimeter and is on the other side of mirror. अब focal निकालने के लिए 1 by V plus 1 by U is equals to 1 by F. 1 by 10 माइनस 1 by 5 इज इक्वल टू 1 by f. तो अब क्या होगा 10 और 5 का एलसीएम, इट विल बी 10. सो 1 minus 2, so your focal length came out to be minus 10 centimeter. Clear? Okay, now proceeding to the next question, that is 12th one. Now the image formed by convex mirror is of the size 1/3 of that of object. Image formed by convex mirror is size 1/3 size of object. How U and V are related? अब सिंपल है, देखो जो कन्वेक्स मिरर है उसमें साइज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, इमेज विल बी वर्चुअल, तो इमेज विल बी पॉजिटिव, दैट इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या आएगा, HI/HO. So 1/3 HO divided by HO. So HO cancels. So here we can write minus V by U. So V can be written as minus 1/3 U. Clear? So this is how your U and V related. U came out to be minus 3V. 13th question. The erect image formed by a concave mirror is of the size डबल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाउ यू एंड वी आर इंटररिलेटेड. अब कनकेव मिरर है, फिर भी इमेज तो इरेक्ट ही है. इरेक्ट इमेज पॉजिटिव 2 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो मैग्निफिकेशन विल बी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हाइट ऑफ इमेज इज 2HO by HO. पॉजिटिव ही हैं दोनों क्योंकि इरेक्ट इमेज है, सीधी बन रही है ना इमेज, वर्चुअल ही है. सो M कैन बी रिटन एज 2 here. So it will be minus V by U. So V can be given by a minus 2U. This is how U and V are related. Proceeding to the next question, the last one for today. The magnification of mirror is minus 3. How U and V are related? Now magnification formula is minus V by U. So it is minus 3. So V can be written as 3U. This is how U and V are interrelated. So that's all students for today. So see you again in the next video. God bless you all.